आज 21 एवं 22 আগস্ট 2025 ईस्टार्न रेलवे मेन्स यूनियन तत्वावधाने डेमोक्रेटिक यूथ एंड वोमेन उइंग्स परिचालनाय त्रिवार्षिक साधारण सभा 2 दिन व्यापी अनुष्ठित होच्छे नৈহাটিতে। साड़म्बरे अनुष्ठित सभाय विभिन्न राज्य थेके ईस्टार्न रेलवे मेन्स यूनियनेर बहु प्रतिनिधि उपस्थित छिलेन। आपनारा এই খবর দেখছেন কেন প্রিয় পোর্টাল চ্যানেল সোশ্যাল মিডিয়ায় অনলাইন বার্তায় মহন্ত দাশগুপ্তর খবরে ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ও বেশি বেশি করে লাইক ও শেয়ার করবেন। আপনাদের সবাইকে ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়ন কাঁচরাপাড়া শাখার যুব এবং পরিবারদের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা এখানে একটি যাই হোক নিজের উপরে ক্ষমা করে দেবেন। सोशल मीडिया आज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम लोग नया तरीका से सोशल मीडिया को इन्फॉर्म कर रहे हैं और वार्ता छড়িয়ে দিতে হবে। কর্মীদের মধ্যে ইস্যু পলিসি পলিটিক্স প্রতিটা ইস্যুর পেছনে একটা পলিসি আছে, প্রতিটা পলিসির পেছনে একটা পলিটিক্স আছে। আমরা রাজনীতি করতে পারবো, আমরা রাজনীতি করতে আছি। রাজনীতি করার মানে কি? আমার নীতি শ্রেষ্ঠ নীতি, রাজার নীতি রাজনীতি নয়, নীতি রাজা রাজনীতি। আমাদের নীতি শ্রেষ্ঠ নীতি। এই নীতি আমাদের নীতি কি? শ্রমিক মেহনতি মানুষের পক্ষে নীতি, শ্রমিক মেহনতি মানুষকে ডেভেলপ করবার নীতি। সেই নীতি মানুষ মারা নীতি। প্রতিটা পেছনে সরকারের যে দূরদর্শনী আছে সেটাকে জনগণের কাছে উন্মোচন করতে হবে। তা না হলে কোনো কাজ না হলে वो लोग बोलेगा हमारा यूनियन कुछ करने वाला नहीं है। ये सोच हमारा लीडरशिप के अंदर में भी है। सारे कुछ हम लोग करने नहीं पाएंगे, लेकिन अपना अंदर में विश्वास रखिए। बांग्ला एक कथा আছে, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন কেউ না আছে তবে একলা চলো। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, আমাদের বিশ্বাস নিয়ে কাজ করতে হবে। আমরা পারবই, কেন পারবো না? আমাদের মধ্যে কোন শক্তি নেই? আমাদের মধ্যে স্বচ্ছতা আছে, আমাদের মধ্যে সততা আছে, আমাদের মধ্যে ডেডিকেশন আছে, আমাদের মধ্যে প্রতিদিনের লড়াই আছে, প্রতিদিনের প্রশাসনিক ঔদ্ধত্য সরকারের কালাকানুনের বিরুদ্ধে লড়াই আছে। কোন জায়গাটা আমরা পিছিয়ে আছি? সব থেকে বড় কথা আমাদের তর তাজা যুব এবং মহিলা বাহিনীরা আমাদের মহিলাদের ভূমিকা, সমস্ত মহিলাকে আমাদের এই মূল ধারার সাথে যুক্ত করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে যে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য আছে তাকে দূর করতে হবে। পরিবার
চ্যারিটি সেক্টর আপনার নিজের পরিবারকে ঠিক করুন, আপনার নিজের পরিবারকে যদি চিন্তা করতে পারেন তাহলে সাধারণ মানুষকে রেল কর্মচারীকে কিভাবে করতে পারে। তাই বাস্তব যে সরকারের যে নিযুক্ত অবস্থা তার যে পরিণতি এই সম্পর্কে তাদেরকে শিক্ষিত করতে হবে। বন্ধু, আমাদের সংগ্রামকে বলতে থাকার জন্য নয়, আমাদের সম্মান দিয়ে বাঁচার জন্য আমাদের সংগ্রাম। আমরা যদি চুপ করে থাকি আগামী প্রজন্ম আমাদের সেবা করবে না। আজকে যুবক যুবতীরা আগামী দিনের নেতৃত্ব, আজকে যুবক যুবতীরা আগামী দিনের নেতৃত্ব। ভূমি আছে সিকিউরিটিরা সব কিছু বিরক্ত। আমরা যেখানে শ্রমিকের দাম, শ্রমিকের অধিকার, শ্রমিকের ভবিষ্যৎ নিরাপদ থাকবে। রেল শ্রমিকদের মাথায় রেখে বারবার তাদেরকে নিচু যেতে হবে, তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আমরা সরকারিকে করতে নয়, প্রতিদিন সেখানে আছে, প্রতিটা মানুষের কাছে সেখানে আছে, তাদেরকে যেতে হবে, বুঝতে হবে তারা কি চাইছে। তাদেরকে উপেক্ষা করে দেওয়া, তাদেরকে অসম্মান করে এগিয়ে যাওয়া যায় না। রেল শ্রমিকরা কি বলতে চায় সেটা উপলব্ধি করে তাদের চাহিদা, তাদের মতামত পরামর্শ করে সম্মান নিয়ে তার থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এটা কোনো উপদেশ নয়, তাদের থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে হবে। তবেই আমরা আমাদের শক্তিশালী করতে পারব। আসুন আমরা বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলি। শ্রমিকদের মর্যাদা চাই, শোষণের শেষ চাই। দয়ার উপর বাতিল করতে হবে, রেল বেসরকারি বাতিল করতে হবে, ইউপিএস এর মধ্যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। করোনাকালে কেবল রেল শ্রমিকেরা জীবন দিয়েছে, রাস্তায় কেউ ছিল, রাস্তায় ছিল, আমাদের আগে সেটা দিতে হবে। সপ্তম বিশ্বকাপে সুবর্ণিত করে 50% হলে অ্যালাউ করে যাচ্ছে, 50%-এর ওপর হলে সেই দিকেটা মাঠ করে দিকের সাথে এখন এই সরকার করবে। তাই আন্দোলনের তীব্রতা বাড়াতে হবে। আজ আর বিরোধী নয়, বিরোধীরা আজকে নেতৃত্ব হোক সুন্দর আমাদের সেই। ধন্যবাদ। হ্যালো, কংগ্রেস জিএসকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের এবার ডোনার ওমেন্স উইংসের সম্পাদিকা প্রতিবেদন পেশ করব। আর আরেকটি কথা আপনাদের বলে দিচ্ছি, প্রতিবেদন পেশ করার পর আপনাদের ডিভিশন থেকে আগত এবং ওয়ার্কশপ থেকে আগত প্রতিবেদনের উপর আলোচনা থাকবে। আপনারা দয়া করে এখানে नाम देंगे। 24% बेरोजगार हमारे देश के अंदर है। हम आपसे ज्यादा लिखे पढ़े बच्चे बाहर घूम रहा है। तो हमारे जेल के अंदर जो भी पद के लिए जो नियुक्त हुए हैं, जो ट्रैकमैन में हो, पोइंट्समैन में हो, एएलपी में हो, टिकट चेकिंग में हो, टीडी में हो, कारखाने में हो, बुकिंग क्लर्क में हो, अकाउंट्स में हो, स्टेशन मास्टर में हो, किसी विभाग के अंदर जो भर्ती हुआ, मैं आपको कहना चाहता हूँ, सबसे पहले युवा जो लिखे पढ़ा युवा है उनको मैं कहना चाहता हूँ, हमको जो भारत रेल के अंदर एक कर्मचारी के नाते नौकरी मिला तो अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, लॉटरी मिला समझना चाहिए। मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूँ, मैं जहाँ कहीं भी जाएगा तो लोगों को इस बात करने के काम मैं करता हूँ।
लेकिन हम लिखे पढ़े, हमारे बच्चे लिखे पढ़े, जो नए जो जितने भी हैं सब ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जब डिप्लोमा है, बीटेक है, एमटेक है, सब पढ़े हुए लोग हमारे बीच में। क्यों? हमसे ज्यादा लगभग लिखे पढ़े हुए देश के अंदर कोई कमी नहीं है, इसलिए लिखे पढ़े कर्मचारी हमारे बीच में आ रहा है। फिर उसको प्रमोशन देने की अभी गवर्नमेंट ने, हमारे जो महामंत्री जी ने जो ट्रैकमेंट से बात करते हुए उनसे कहा था, जो TCPS ट्रैकमेंट कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम जो बनवाया था, उनको 2800 तक की ग्रेड तक ले जाने के काम किसी ने किए, यही ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन ने किया। मैं आपको कहना चाहता हूं वही ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की मांग है, आने वाले दिनों में उनको 4200 की मांग यही ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन कर रहा है, इसको भूलिएगा नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं। तो हम लोग ये सारे चीज को मानते हुए पॉइंट्समैन कैटेगरी का उनका अपना, मुझे पता नहीं कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की कोई कर्मचारी महामंत्री जी से बात हुए करके मैंने देखा नहीं, शायद बात क्यों होगा। मुझे लगता है सबसे बड़ा परेशानी वाली एक विभाग जैसी इंजीनियरिंग है वैसी विभाग SNT का सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की कर्मचारी, उनको भी बहुत बड़ा समस्या है। बालासोर की इंसिडेंट आपने देखा होगा, इतनी भयानक दुर्घटना होने के काम किए, दुर्घटना होने के बाद हमारे रेल के कर्मचारियों को पकड़ के जेल में डालने का काम किया, उन्होंने बड़ा गुनाह किया। हमारा रेल की कर्मचारी कोई जानबूझ के कोई गलती नहीं करता, कोई ट्रैकमैन कोई गलती नहीं करता जानबूझ के, कोई पोस्टमैन, कोई लोको पायलट, कोई ट्रेन मैनेजर, कोई कारखाने की कर्मचारी, कोई इलेक्ट्रिकल की कर्मचारी, कोई मैकेनिकल की कर्मचारी, मैं कहता हूं जानबूझकर कोई गलती करता नहीं। अगर गलती होता है मजबूरन, मजबूरी इसलिए 8 घंटे की ड्यूटी के बदले अगर आप 16 घंटे ड्यूटी कराएगा, 24 घंटे ड्यूटी कराएगा, हफ्ते में रेस्ट मिल जाती है, रेस्ट करने से 2 हफ्ते की ड्यूटी करवाएगा, वो इंसान है आखिर में, उनको नींद आएगा, आंख बंद होगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ उसमें उनको गुना देने फायदा नहीं, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, इस तरीके से काम कराने वाले लोग हैं, उनको गुनेगार समझना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ रेल कर्मचारी कभी गलती नहीं कर सकता, मैं आपको ये कहता हूँ रेल कर्मचारी इसलिए गलती नहीं कर सकता। आप देश के अंदर 2020 के अंदर जो कोविड की बीमारी आया, आपने देखा होगा बीमारी आने के बाद मुंबई के अंदर बड़े बड़े अस्पताल का जो डॉक्टर लोग हमारे दोस्तों का, जैसे 5 मई 2020 के अंदर जो लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, अच्छे डॉक्टर लोग छुट्टी लेके चले गए। KEM के एक बहुत बड़ा डॉक्टर को मैंने फोन किया, मेरा दोस्त था, मैं बोला बहुत आप कहाँ हैं, आप कहाँ चले गए? तो उन्होंने कहा कि यार मेरा 2 बच्चा, अभी सरकार ने आदेश दिया कि कोविड में अगर कोई डॉक्टर को कुछ हो जाएगा 50 लाख रुपए देगा, तो मेरा जो 2 बच्चे को परवरिश करने के लिए 50 लाख ठीक नहीं, इसलिए मैं छुट्टी पर कहीं बाहर हूँ, मैं अस्पताल में नहीं है, ये बोलने का काम किए। उसके बाद में 15-20 दिन के बाद में सारे राज्य सरकारों ने, सारे केंद्र सरकार ने आदेश देने के बाद सारे डॉक्टर वापस आए। लेकिन हम रेल के कर्मचारी को समझ में आना चाहिए, जो 2020 के अंदर जो लॉकडाउन होने के बाद उसी दिन से एक दिन भी हमारा रेल के कर्मचारी खाली बैठा नहीं। हमारा कहीं MT रेल यहाँ वहाँ कहीं रेलवे के अंदर था, इसको वापस लाने के लिए हमारा जो कर्मचारी, हमारा गाड़ी चलाने वाले लोग, हमारे इंजीनियरिंग के अंदर काम करने वाले लोग, हमारे ऑपरेटिंग के अंदर काम करने वाले लोग, हमारे सिग्नल के अंदर काम करने वाले लोग, हमारा अलग अलग बात के अंदर काम करने वाले लोग डे 1 से काम कर रहा था। अगर हिंदुस्तान के अंदर ये भारत रेल अगर भारत सरकार की नहीं होता तो मैं आपको कहता हूँ वो वाला काम नहीं होते। हमारा जो कोविड की बीमारी होने के बाद आज और हम जिस तरीके से एक सामने बैठ के हम लोग जो मीटिंग करने का मौका हमें मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिलता। अगर ये कोई संभव हुआ, भारत रेल की कर्मचारी, हम आपकी ईमानदारी, कोविड के समय में भी घर में न बैठ के पूरी दुनिया घर में बैठा था, लेकिन भारत रेल की कर्मचारी काम किए। इसलिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर दवा से लेके अनाज से लेके ऑक्सीजन तक एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने के काम किसी ने किए, भारत रेल की कर्मचारी ने किए। मैं गर्व के साथ में कह सकता हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ। लेकिन सरकार इस बात को भूल रहा है। आज वंदे भारत कितने नए नाम की गाड़ी ले आए पता नहीं। आज हमारा ट्रैकमैन साथी केरल इतनी गाड़ियां बढ़ गया, इतनी पटरियां बढ़ गया। पहले एक पटरी हुआ करता था, फिर डबल लाइन हो गया, फिर ट्रिपल लाइन हो गया, अभी 4था लाइन की बात कर रहा है। गाड़ियां इतना बढ़ गया, स्टेशन इतना बढ़ गया, बुकिंग काउंटर इतना बढ़ गया, लेकिन एक भी कर्मचारी की संख्या बढ़ नहीं रहा। साथ में आपको यह भी समझने की जरूरत है, हर महीने में सियालदा डिवीजन हो, आपका कलकत्ता का जो जोनल रेलवे हो, या हमारे सारे के सारे 17 जोनल रेलवे के अंदर सारे डिवीजनों के अंदर हर महीने के अंदर सुपरन्वेशन में जो सेवानिवृत्ति होने वाले की संख्या कम से कम 100 है। कम से कम एक मंडल के अंदर, एक कारखाने के अंदर कम से कम 100 लोग सेवानिवृत्त हुआ है। लेकिन भर्ती की बात करेगा रेल मंत्री जी, 5 साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 50,000 की, 80,000 की भर्ती करने की बात करेगा। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो बात होगा, पार्लियामेंट के अंदर वो कहते हैं 2.5 लाख वैकेंसी है, वो वैकेंसी बैठे, लेकिन हमारे जो लोग सेवानिवृत्त होगा उसकी संख्या अलग और भर्ती करने की संख्या में आपको कहना चाहता हूँ। हर जगह में कम कर्मचारियों से प्राप्त मिलता है, हर जगह में ठेकेदारी पता लाने की कोशिश करता है। हमारा जो लाइन के अंदर जाने वाला सब ठेकेदार को आ गया,
ठेकेदारी कर्मचारी आ गया, इंजीनियरिंग के साथ देखा बहुत सारे काम करने के लिए ठेकेदारी कर्मचारी आ गया। अभी आपका स्टेशन आपके यही स्टेशन के अंदर ले जाएंगे एक जमाने में स्टेशन के अंदर काम करने वाले कर्मचारी जो सफाई वाला कर्मचारी देश का हुआ कर रहा, लेकिन आज सफाई करने वाले कर्मचारी ठेकेदारी के कर्मचारी काम कर रहा। ठेकेदारी के कर्मचारी को रखने में भारत सरकार की फायदा दे तो फायदा नहीं देता, लेकिन वो जो ठेके में काम करने वाले कर्मचारी उनको न्यूनतम वेतन हमारा जो राज्य सरकार हमारा जो केंद्र सरकार के न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, जो सरकार ने न्यूनतम वेतन दी उन कर्मचारियों को नहीं मिला। मैं आपको कहना चाहता हूँ इसलिए बेरोजगार हम देख सकता आज जितने भी अधिकार पाते हुए इतनी जनता पाते हुए वहां से सर्व त्याग करके आजादी के साथ में हम आप काम करने के जो मौका मिला ये राजनीति की देन है, ये ईआर की देन है, ये की देन है, इस राजनीति की यूनियन की देन है, जिसको मत भूलिएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ यूनियन को ताकतवर बनाइए, आपको बनाने की ताकत करना ही पड़ेगा। एक जमाना यूपीएस की बात है, यूपीएस की बात ओपीएस की बात हमारा मान नहीं करेंगे, लेकिन देश के नौजवान साथियों को मैं कहना चाहता हूँ 1998 के अंदर उस समय की सरकार ने राकेश मोहन करके कमेटी का गठन किया था। उस राकेश मोहन साहब ने कहा था राकेश मोहन साहब ने 1998 के अंदर कहा था रेल मंत्रालय के लिए केवल 4 आईटी की जरूरत है, 4 आईटी की जरूरत नहीं, चाहे 4 आईटी हमें भी नहीं पता था उस समय 4 आईटी क्या है। हम लोगों ने लोगों को बताया, फिर स्पेशलाइज लोगों को लेकर आया किया हमारे उसमें की बात है, हमको पता चला कि 4 आईटी का मतलब लोगों को पहले ट्रेन मैनेजर ऑपरेटिंग यानी स्टेशन मैनेजर ट्रेन मैनेजर लोगों को पहले ये 3 विभाग ट्रैफिक लर्निंग ऑपरेटिंग लर्निंग ऑपरेटिंग इसके अलावा किसी बात की जरूरत नहीं, बाकी सबको उसी समय में खत्म करने की बात आगे साहब ने किया था। लेकिन उस रिपोर्ट को किसी ने कचरे के डब्बे में डलवाया होगा, यही फेडरेशन यही के लोगों ने आंदोलन करते हुए रिपोर्ट को कचरे के डिब्बे में डलवा के अगर नहीं डलवाया होगा आज हमारे कर्मचारी को दिखते थे क्या नहीं दिखते थे। आज हमारे नए कर्मचारी अगर भर्ती होगा यही यूनियन के देने यही आर्मी के देने यही रेलवे के देने यही ओलिंपिया रेलवे फ्रेश के देने मैं आपको सब कहना चाहता हूँ। उसके बाद में मौजूदा सरकार ये आने के बाद में 2015 के अंदर विजय के साहब ने कमेटी का गठन किया था। वो विजय के साहब ने मुझे कहा था विजय के साहब ने मुझे कहा था केवल थोड़ा किसी जरूरत है, साथ साथ में उन्होंने कहा था जो नारी जनता इसको भी कम से कम 50% इनको भी लेकर किसी प्राइवेट कंपनी के साथ में करना चाहिए, तब गवर्नमेंट इसको का काम किया। उसके बाद में पहला कैसे काम किया। आप चीज को समझो, इसीलिए हमारे यूनियन को ताकतवर बनाने की जरूरत है, इसीलिए ईआरपी के साथ देने की जरूरत है, इसी ओलिंपिया के साथ देने की जरूरत है। अगर आप ताकत नहीं बनाओगे, अगर आप लोग कार्यक्रम नहीं करोगे तो आने वाली जो आठों कंपनी करके बैठे हुए तो कितना मिलेगा ऊपर वाले ही आने का आपको कहना चाहता हूँ। और हमारे यूनियन की जिस जगह हमारा काम की हमने कोशिश किया था, हमारे यूनियन की नारा सर्वधर्म समाज है, हम एक दूसरे को रेल की कर्मचारी करके जानते हैं, एक दूसरे को इंसान करके जानते हैं, उसके अलावा हमारा कोई पहचान नहीं। रेल की कर्मचारी इंसान इसके अलावा कोई पहचान नहीं। आपको कहना चाहता हूँ सर्वधर्म समभाव हमें राजनीति की लोग नहीं है, लाल झंडा जरूर कहता है, हम अपनी राजनीति की लोग नहीं है। हमारा जो कर्मचारी की हित में जो काम करेगा, गरीब के हित में जो काम करेगा, उसके साथ में लाल झंडे की लोग करेगा, ये तो मैं आपको कहना चाहता हूँ। लेकिन हमारा कर्मचारी विरुद्ध करने कोई काम करेगा, हमारे गरीब के विरुद्ध कोई काम करेगा, जितने भी सरकार खड़े हो उसके विरुद्ध लड़ने का ताकत अपनी रखा है। पहले भी लड़ा, आज भी लड़ा, आगे लड़ने का मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं ज्यादा समय लेना चाहिए क्योंकि हमारी काम नहीं है, जब काम नहीं रहेगा तो ज्यादा समझता हूँ। और दूसरे एक चीज मैं आपको कहता हूँ, जब कभी भी हम लोग आंदोलन करना है तो आंदोलन के बारे में लोग चर्चा करता है, व्हाट्सएप भी किया है। मुझे लगता है कि हम लोग एक साल में चलेगा कि कोई ट्रेन नहीं जाएगा, कोई बस में जाएगा, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखता। अगर बगल में बाप में बैठा होगा तो भी नहीं देखता, बाप को भी नहीं देखता, बाप बेटे को भी नहीं देखता, पति पत्नी भी रहेगा तो एक दूसरे को भी देखता। कहीं वो व्हाट्सएप कर रहे हैं क्या बेचता क्या लेता पता नहीं, वो भेजने वाले को मालूम है क्या भेजेगा, लेने वाले को मालूम है क्या देगा। वो जमाना खत्म हो गया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कभी कभी मैं सोचता हूँ यार एक दूसरे को देखो तो सही नजर वगैरह नहीं है कहना तो आप कम ये इसमें ही सारे चीज नहीं हो सकता है, तो आंदोलन कुछ नहीं करता है। ओपीएस लाने के लिए एक बार ही अनेक बार हमने आदमी मामूल की जाने पर एक बार अनेक बार हम लोग गए, हमें पूरी चीज को लेकर आपने मामूल लिया है। लेकिन उस समय हमें लगा हमारे जो न्यू पेंशन के अंदर लेकिन 2004 के बाद भर्ती में कितने लोगों से आया मुझे लगता है कि समय कितने बार पार्लियामेंट के सामने गए। मुझे लगता है कि मुश्किल से 10% लोगों का जो न्यू पेंशन स्कीम लोग उस वक्त पार्लियामेंट के सामने आया होगा। लेकिन जो न्यू पेंशन स्कीम खत्म करना चाहिए, ओपीएस चाहिए,
ओपीएस वाले ही किया था, क्योंकि जितने भी लीडर लोग हैं, जो ओपीएस पढ़ने वाले लोग हैं, जो ओपीएस लिखने वाले लोग, वही कह रहा था कि एनपीएस नहीं चलेगा, ओपीएस चाहिए, ओपीएस चाहिए। और जिसको एनपीएस मिल रहा था उस समय लोग बोला था कि उस समय की सरकार ने जिस तरीके से आदत की है, भाई कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी सरकार चल रहा था। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जब आपकी सेवा नहीं होगा तो शेयर बाजार के अंदर पैसा डालवाइए, इतना पड़ेगा, जो ओपीएस के अंदर जिसको जितनी पैसे मिलेगा उससे 4 गुना 5 गुना ज्यादा पैसे आपको मिलेगा। लोगों ने कहा था तो उसी के भरोसे बैठे थे। लेकिन आप याद रखें, अभी अभी जो रिटर्न हुआ था, सेवानिवृत्त हुआ था, कोई डिफेंस से आए लोग, कोई दिया सेवानिवृत्त हुआ था, जब उनको पेंशन नहीं मिल रहा था, जब मिनिमम पेंशन वाली मामला आ गया, उसको लेकर हमारे मांग रही है। हमारे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने बिल्कुल मैदान में उतर के काम करके काम किए। पूरे हिंदुस्तान के सरकार के लिए एक साथ में सारे यूनियन एक साथ में आके अपनी रेलवे पर काम करने के काम किए। तब तो कम से कम मिनिमम गारंटी पेंशन सरकार करने के काम किया, नहीं सरकार चर्चा करने के लिए ये ताकत की बात को आप मानिएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ ताकत जितना ज्यादा रहेगा उतना काम हमारा होगा, उससे ज्यादा नहीं लेते हुए 2024 के बयान मान्यता का एक चुनाव हमारे हिंदुस्तान के अंदर हुआ। मैं इससे पहले की प्रधानमंत्री, इससे पहले की अध्यक्ष और इनकी पूजा के मंडल के युवा महिला को 20 को अभिनंदन करना चाहता हूँ। जिस तरीके से चुनाव के अंदर आप लोगों ने प्रथम स्थान लेके 18% लेकर आगे का काम किया, मैं नेशनल यूनियन की तरफ से पूरा हमारा जो केंद्र की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। जो जीता के हाथ किया इसमें कोई सवाल नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के चुनाव के अंदर किस तरीके से मामला चल रहा था, तो सरकार एक तरफ बाकी जितने भी एक साथ जो दूसरे राजनीतिक यूनियन सारे लोग एक साथ और राजनीतिक यूनियन आगे लेने के काम किए, आगे लेने के प्रमुख स्थान को उठाने का काम किए। इसलिए आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके अभिनंदन करना चाहता हूँ। जब तक मैं नहीं कहूँगा, मैं जहाँ तक लोगों के सामने एक ही बात करता हूँ, वहाँ मीडिया काम करता है किसी भी बात को ट्रैक में जो ऊपर होने वाला न्याय को लेके, चाहे ओपीएस को लाने की बात को लेके, या रवि साहब के ऊपर जो कहानी हो उसको लेके, या टीवी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग मैकेनिकल किसी मामले को लेके, या मिनिस्ट्री किसी बात को लेकर आपको लगेगा सरकार को ज्यादा नहीं कर रहा है, वहां से एक घंटा देने की जरूरत है। एक आदेश करिएगा, आधा घंटे में अगर सेक्टर में नहीं हुआ तो सरकार करता है दिन रात मेहनत करने के काम करते हैं, पूरी लोगों के बीच रहने के काम करते हैं, कर्मचारी के बीच रहने के काम करते हैं। हमारे कानून कर्मचारी है, हमारे पास कोई नहीं है, और ये हमारा जीवन भी जानता है, हमारा जीवन भी जानता है। 30,000 बात करेगा तो नहीं चलाना मुश्किल हो जाएगा। और मैं अपनी महाराष्ट्र में चीजें बोलता हूँ, कभी मंडल में चीजें बोलता हूँ, ये आप ही कभी कोई नहीं करता है। वहां गए कोई दिया, कोई किया, कोई किया, कोई हमारा नियम से नहीं चला, गलत कर दिया, नियम से भाग गए, जब हम लोग जो नियम से गाड़ी नहीं चला सकता तो थोड़ा सा चूंकि हमारा पर रहना पड़ेगा, तब गाड़ी चल सकता है। मैं कहता हूँ अगर नियम से हम चला नहीं सकता फिर हमारे ऊपर रोकने की कोशिश करेगा, हम ताकतवर लोग लागे नहीं होंगे तो खड़ा करने को भी नहीं होगा। मैं कहता हूँ यही नहीं तो चलिएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे प्रधानमंत्री हमारे बीच में पूरी समय को देखने की जरूरत है, इसलिए मैं ज्यादा समय ले सकूँ। हमारा आपको देख रहा अभी दूसरे में क्यों देख रहा हूँ, खत्म करना इसलिए देख रहा या यदि थोड़ा सा और चलाना इसलिए देख रहा पता नहीं, लेकिन वो दूसरे में गुस्सा करेगा तो प्यार वाला होता है, ये भी मुझे पता है। लेकिन हमको जो गुस्सा हमारे को काम नहीं है उनके तरफ देखने की जरूरत है, पूरी समय को दीजिएगा। मैं कहता हूँ जो पीछे साइड में जितने लोग खड़ा है, अगर प्रधानमंत्री के भाषण से समय अगर आगे बढ़ जाएगा तो सुनने में मजा आएगा। आपको बैठने को तैयार है, मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूँ, तो उनको भी भाषण करने को हो जाएगा, आपको सुनने को मजा आएगा। इतने बोलते हुए एक दो बार सबके कुछ आवाज नहीं बना, सबके हमारा नारा का झगड़ा लग गया, वो आपको पता चला मुंबई में कोई आया और हमारे प्रोग्राम से देखा होगा हमारे लेवल क्या है, वो थोड़ा सा अलग लेवल है। थोड़ा सब लोग मुंह से आवाज करिए, इधर हमारे इधर खाने वाला कोई है, इधर कोई ऐसा आता है खाने का, मेरा मुंह में गुटखा वगैरह खाने की आदत नहीं है, नहीं गुटखा वगैरह खाने की आदत होगा तो कितना बार मन करना, आगे वाले का कपड़ा खराब करेगा, तो उसके घर में मारामारी होगा। इसके लिए ये बिल्कुल चिंता करिएगा, अगर रहेगा थोड़ा हाथ में लीजिएगा, थोड़ा सा आवाज करिएगा।
मोटी बात सबके मुंह से आवाज आ रही है, सबके मुंह से। ईस्टर्न डेवलपमेंट यूनियन जिंदाबाद, ईस्टर्न डेवलपमेंट यूनियन जिंदाबाद, ऑल इंडिया डेवलपमेंट फेडरेशन जिंदाबाद, ऑल इंडिया डेवलपमेंट फेडरेशन जिंदाबाद। दुनिया के मजदूरों, दुनिया के मजदूरों। मुझे पता है कुछ लोग तो जिंदाबाद करने लगे, वो तो सोचा कि क्या करेंगे, कुछ लोग ऐसे हाथ कर रहे हैं, मुंह से तो कहेंगे, कुछ लोग मुंह से करना हाथ नहीं करता, अपने अपनी बड़ी मिस्टेक को मदद नहीं कर सकता। अगर आपको मेरी से इच्छा तो हमें कर एक बार पूरा आवाज आनी चाहिए, आपका सियादा रीजन में सियादा तक आवाज जाएगा, तो बारिश में आवाज आना हमारा बोलने की आवाज नहीं आएगा। अब लोग बोलते ना ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्या करेंगे, चक्का जाम रहेंगे, चक्का जाम होगा, आवाज नहीं होगा, चक्का जाम होने वाला है। एक बार जोर से आवाज करिएगा, ऑल इंडिया डेवलपमेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया डेवलपमेंट फेडरेशन, प्रोफेसर मर्जिना जी को लाख सलाम, प्रोफेसर मर्जिना जी को लाख सलाम। दुनिया के मजदूर, दुनिया के मजदूर, धन्यवाद धन्यवाद। अभी तक उनका फोर नहीं आने वाले समय में उनका भी 4200 का डेट दे देना। का इंस्ट्रक्टर तो तय हो गया, तक आया नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत जल्दी उनका भी फोर इंस्ट्रक्टर हो जाएगा, और जब पहला इंस्ट्रक्टर आएगी तो उनको भी 4200 मिलने का काम होता है। और जो हमारे मास्टर टेक्नीशियन है वो भी हमसे कहते हैं, हम पूछते थे कहीं पे खड़े रहने के कई लोग तो कहते हैं कि जब राजनीति जी बनवास में गए थे तो कुछ लोग सरयू के किनारे खड़े रहे, उनके लोगों के किनारे क्या वही हालत हमारी नहीं होने वाली, तो हुकूमत विकास आने वाले समय में हमने डिमांड किया है कि 42 वालों को 40 के मिलना होगा। तो ये यहाँ पे कचरा बड़ा लेकिन सीनियर डिसीजन नहीं हो रहे और बहुत बढ़ाई और जमात वाले की बात को लगाया कचरा समझ पाए नहीं कम लोग हैं और ओपन लाइन में टेक्नीशियन फिरागर कितने हैं यहाँ पर जरा वो भी हम हैं। ये हाल नारा लगाने की जिम्मेदारी सिर्फ जमालपुर वर्ष का। भाई ये तो चलेगा नहीं, लगाओ सब लोग लगाओ, और नहीं तो जमालपुर वालों के बूथे पे थोड़ी ना सब कुछ हो जाएगा। अगर ये हासिल करना है तो सारे लोगों की मिली जुली शक्ति जब होगी तभी मिलने वाला है।
हमारे तमाम रनिंग के साथी हैं, उनको भी हम लोगों ने डिमांड कर रखी है कि भाई ये 4200 में ही वंदे भारत, 4200 में ही अमृत भारत, 4200 में ही मेयर, 4200 में सुपरफास्ट, 4200 में ही सब गाड़ियाँ चलाएंगे क्या? तो उनको भी 4600 देना पड़ेगा। लोको पायलट को भी 4600 का गेट पे देना होगा, और जब उनको 4600 देंगे तो CLI को भी 4800 का गेट पे देना पड़ेगा, और 5400 का गेट भी उनको देना पड़ेगा। ये भी हम लोगों ने डिमांड रखा था। हम लोगों ने ये भी डिमांड करी है कि आने वाले समय में ट्रैक जो हमारे ट्रेन मैनेजर है वो भी एक साथ कह रहे थे कि जो है वो गाड़ियाँ बिना ट्रेन मैनेजर के चल रही हैं, बिल्कुल अनसेफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा प्रयास है तो उसको रुकवाने का काम हमारे साथियों को, अमन से गाड़ियाँ तो अभी हमने उनके लिए भी डिमांड किया है कि उनको भी 4600 का गेट पे मिले, और जो काउंसलर्स हैं, TMC का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं है, ट्रेन मैनेजर काउंसलर, उनको भी 4800 का गेट पे मिला। तो एक प्रयास है ऑल इंडिया रेलवे, हम प्रयास करते हैं कि आपके काम के घंटे कम हो, और जहां भी मीटिंग में जाते हैं लोग कहते हैं हमारे काम के घंटे बढ़ गए। तो आपको भी मना करना पड़ेगा। अगर जो नियम है उसके विरुद्ध प्रशासन आपसे काम लेने के लिए आपको बाध्य करता है तो आए जाइए ऑल इंडिया रेल फेडरेशन। मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप निश्चित तौर पर गाड़ी रोक दीजिए, जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूं। ये लोग जो हम लोग तानाशाह है कि जो नियम कानून है उनको बनाए ताक पर रख करके अगर ये काम कराना चाहते हैं, काम के घंटों ज़्यादा काम लेना चाहते हैं, अनसेफ कंडीशंस पर काम लेना चाहते हैं, तो ये काम कराने के लिए हम बाध्य नहीं है, ये काम हम नहीं करेंगे। हमारे रनिंग के साथियों की एक और बड़ी शिकायत है, होनी भी चाहिए, फ्रंटलाइन के स्टाफ। अभी मैं एक्सपेडिशन से मिला था, आपने कहा कि आप हमको एक बात बताइए कि जो लोग गाड़ियों में सोते हुए जाते हैं उनको तो फुल DA मिलता है और 25% टोल भी मिलता है, और ये जो गाड़ियाँ चलाते हुए जाते हैं इनको 25% नहीं मिलता। चलिए इसका क्या मतलब है मैंने कुछ समझाया। आइए सर, पहले वाला तो तैयार हो गया था लेकिन कुछ ज़्यादा ही स्पष्टवादी था तो उसको कुंडिया नहीं लगा दिया गया। ये भी अच्छा आदमी है, कहा कि मैं इस पर बिल्कुल विचार करूँगा, और उसके बाद में DGHR और हमारे AM स्टाफ और AM फाइनेंस मिले थे तो उनको कहा है कि नहीं आप हमको इस प्रपोजल को दोबारा भिजवाइए, मैं इसको कंसीडर करूँगा। तो मैंने आपको उसी नाते ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 25% आपका है वो आप एक बात मान करके चलिए कि ये आपका डिपॉजिट हो रहा है, ये आपको एरियर के साथ मिलने का काम होगा, ये मैं आपको विश्वास करता हूँ, इसको कोई मार नहीं। तो इसलिए कुछ साथी 18 महीने के DA की भी बात कर रहे हैं। ये एजेंडा आइटम था हमारा, जो है वो हमारे उसमें स्टैंडिंग कमेटी, और वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। जब हमने कहा कि आप फिर लागू नहीं करेंगे तो आप आइए इस पर डिसएग्रीमेंट कर लेते, तो फौरन उनकी विंडो खुल गई, विंडो क्या रोशनदान खुल गए, खिड़की खुल गई। उनका नहीं 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 अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। हमने कहा क्यों? कहने नहीं मैं सरकार से बात कर लूँ, मुख्यमंत्री से मैं जानता हूँ अभी नेशनल काउंसिल की मीटिंग होने वाली है सितंबर के महीने में,
या तो ये 18 महीने के डीए को देने का फैसला करेंगे और नहीं फैसला करेंगे तो स्टाफ साइड की ओर से हम इस पर डिसएग्रीमेंट करने का काम करेंगे और इसको आर्बिट्रेशन में ले जाने का काम करेंगे ताकि आर्बिट्रेशन को सही निर्णय दे सके, वो काम करने का काम करेंगे। ये डिफॉल्ट में है, ये हमारा अधिकार है, इसको कोई चीज नहीं। आपने थोड़े के लिए रोक दिया था, कोई बात नहीं। अब जो है वो आप बाहर दिए जा जाए जो सबसे बड़ी समस्या और चुनौतियां है। क्या लगता है आपको? क्या हमारा कोई साथी बताएगा कि आज के दिन में सबसे बड़ी चुनौतियां आपको क्या लगता है? क्या ये तो कोई गलत बात है? आप लोग कभी ईश्वर में मजबूरी यूनियन के बाहर की सिपाही है ना? तो फिर आपको सबसे बड़ी चुनौती नहीं मालूम है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि 1 जनवरी 2026 से तनख्वाह बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये है कि नहीं है? आपके मन में ये सवाल नहीं आता? अरे देखो, ये पेंशन लोगों के मन में भी आ रहा है कि हमारी पेंशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी 1 जनवरी 2026, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ी हमारे सामने ये जो चीजें हैं उनका हल कैसे, उनका हल तभी होगा पे कमीशन तय जाए, कैपिटल रेफरेंस डिक्लेयर हो जाए, हमारे रिटायर्ड साथी भी खुश हो जाएंगे। ये देखेंगे कि नहीं, ये तो कोई असर ही नहीं है, जो साथियों में भी वेतन आयोग में था वही अभी भी है, और हम लोगों को भी संतोष हो जाएगा। चलो 7 साल लगे, 1.5 साल लगे, लेकिन 1 जनवरी 2026 से तनख्वाह मिलेगी बढ़ करके। तो मैं कई बार लेकिन अगर ये बहुत लंबे समय तक इसको विलंबित रखा था तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कानून में मैं साथियों को बहादुर था इस बात का आह्वान करना चाहता हूँ कि यार बहुत जल्दी फैसला लेने वाला है और जिस दिन फैसला लेगा उसके बाद में आज सबको इकट्ठा होकर के हर मंडल कार्यालय पर अलग जगानी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि अगर इतने समय के भीतर सरकार ने पे कमीशन का अनाउंसमेंट नहीं किया, नोटिफाई नहीं किया, तो हम सड़क पर उतरेंगे और जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली पहुंच करके संसद भी घेरने का काम करेंगे। ये फैसला घेरेंगे ना संसद, आएंगे ना दिल्ली। सब लोग नहीं बोल रहे हैं, सब लोग नहीं बोल रहे की ताकत से। ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ, डोंट वरी फॉर टेंशन नहीं लेने का। एक फिल्म में वो डायलॉग बोलता है ना, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन लेने का है। जब मौका मिले सरकार को टेंशन दो, प्रधानमंत्री को टेंशन दो, आपको कोई जरूरत नहीं टेंशन लेने की, हम है ना। तो इसलिए हम परेशान होते और ये परिस्थितियां बराबर आती जा रही हैं और हमको कालीबाड़ी भी जाना है, पता नहीं जो भी आपकी मांग होगी वो आपके कदम उठेगी, वो आपको जीत दिलाएगी। ये कहते हुए मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। इंडियन जनरल मीटिंग बंगाल में, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, नैटी जो हो रहा है इसके बारे में क्या बोलिएगा? ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन का नेतृत्व में जो हो रहा है, क्या फिर बोलिए तुम? आज का जो प्रोग्राम इतना महत्वपूर्ण जो प्रोग्राम श्रमिक लोगों के लिए, जो रेलवे कर्मचारी लोग के लिए जो बनाया गया, क्या बोलिएगा आज? देखिए, आज ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन ने, इनकी कल सेंट्रल काउंसिल है, आज इन्होंने ओपन सेशन करने का काम किया है और इसमें बहुत
बहुत सारे विषयों पर कल चर्चा करेंगे सेंट्रल काउंसिल में। आज इन सबको संबोधित करते हुए हमने बात कही है कि हमारे तमाम जो कैडर रिस्ट्रिक्शन में इश्यूज उलझे हुए हैं, उन तमाम विषयों पर बोर्ड के साथ चर्चा चल रही है और हम उनसे ये कहने का काम कर रहे हैं कि इस कैडर रिस्ट्रिक्शन को हार्ड और रिस्क लिमिटेड हाउस को इसको जो है वो पे कमीशन की घोषणा होने से पहले लागू करना है, ताकि आने वाले समय में इसका लाभ जो है हमारे कर्मचारियों को। दूसरी बात यह है कि जो हमारे रनिंग कर्मचारी हैं उनको जो 25% 50% ये मर्ज होने के बाद उनको माइलेज में बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसको इमीडिएटली करने की हमारी ये भी मांग है कि आने वाले समय में जो पे कमीशन है वो जल्दी से जल्दी बैठना चाहिए और 1 जनवरी 2026 जैसे कि सरकार ने घोषणा की है तो उसके लिए अगर इस पर विलम्ब किया जाएगा तो कर्मचारियों के अंदर बहुत असंतोष पड़ रहा है। अगर ये जल्दी इसका अनाउंसमेंट नहीं होगा तो एसोसिएशन इसके लिए पूरे तौर पर संघर्ष करेंगे। हम काम के घंटों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम वर्किंग कंडीशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम लिविंग कंडीशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे कर्मचारी हैं जो 24/7 काम करते हैं, हर साल 500 के करीब अपनी शहादत देते हैं, उनको कार्य दशाओं में सुधार होना चाहिए, उनकी लिविंग कंडीशन में सुधार होना चाहिए और उनको अच्छे से अच्छा वेतनमान और उनके अलाउंसेज मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है और मैं समझता हूँ कि यारी में हमारी मजबूत यूनियन है, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की, उनका जो कैडर है बहुत मजबूत है। जब भी हम संघर्ष का आह्वान करेंगे उसमें यारी जो है वो सबसे आगे रहेगी, ऐसी हमें। आपका जो तगड़ा जो यूनियन है, संगठन बहुत मजबूत यूनियन है आपका, और दूसरा भी बहुत यूनियन है, सब कोई लड़ रहा है श्रमिक कर्मचारी के लिए, लेकिन फिर भी मनमानी कर रहा है रेल। इसके बारे में क्या सोचिएगा? ये जो ज़बरदस्ती कर रहा है, हमारी लड़ाई है जिसकी वजह से आज रेल जो है वो सरकारी क्षेत्र, अगर ऑल इंडिया रेल फेडरेशन लॉन्ग नहीं रहा होता तो ये लोग जो है खड़े खड़े रेल को बेच देते। अगर आज भी इतना सब कुछ होने के बावजूद रेलवे निजी हाथों में सौंपी नहीं जा पाई है तो उसकी वजह ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन जैसी यूनियन नहीं है। हमारा कैडर पूरे तौर पर लड़ने के लिए तैयार है। हम रेलों की सुरक्षा सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम रेल बचाने की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि इससे देश भी बचे और समाज भी बचे। आपका नाम? शिव गोपाल मिश्रा, मैं महामंत्री हूँ ऑल इंडिया। কি বলবেন আজকে? ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়নের যে আজকে ট্রিবিউনাল যে আজকে সভা হলো, তা এই বিষয়ে যে রেল কর্মচারীদের ব্যাপারে বিভিন্ন দাবি দাওয়া এবং পরামর্শ আলোচনা সব হলো, এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন? আপনার কতটা সাফল্য মনে করছেন এবং আপনার কি কি উদ্যোগ আগামী দিনে সেটাও বলবেন। অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে আজকে যে প্রোগ্রামটা হলো এটা হচ্ছে যুব মহিলা সম্মেলন, যেটা হলো 3 বছর বাদে আমরা এটা করি, জিজিএম হিসেবে করি। তা সেই সম্মেলনটা ছিল আজকে সকালবেলা, সেটাকে উদ্বোধন করেছে অল ইন্ডিয়ার যে আমাদের মহিলা যে কনভেনার তিনি করেছেন, আজকে এর উদ্বোধন করেছেন প্রবীণাজি। তারপরে আমাদের যে অনুষ্ঠান ছিল হচ্ছে যুব মহিলার যে 3 বছরের যে রিপোর্ট সেগুলো সমগ্রভাবে পেশ করা হয় এবং আমাদের আগামী দিনের যে কাজ সেগুলো আমরা করতে উদ্যত হয়েছি। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আজকে আমাদের তারপরে প্রোগ্রাম হচ্ছে এই ওপেন সেশনে শ্রী গোপাল মিশ্রজি এসছেন এবং বোম্বে থেকে এসছেন আমাদের আরেকজন কেন্দ্রীয় নেতা, তার নাম হচ্ছে ভেনুপি নায়ক। তো ভেনুপি নায়ক তো এবার মিশ্রাজি মোটামুটি যেটুকুনি বললেন আপনারা হয়তো শুনেছেন যে শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থে ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়ন অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে ফেডারেশন ছাড়া কোনোভাবেই কেউ অগ্রসর হয় না। স্বাভাবিকভাবে আমাদের যে দাবিগুলো আছে, 8ম বেতন পে কমিশন, সেটা যাতে শীঘ্রই যাতে আমরা পেতে পারি, আমাদের যে 18 মাসের যে ডিএ বা বকেয়া সেটা যাতে আমরা পেতে পারি এবং বিভিন্ন রকম বেসিকের ওপর যে বিভিন্ন রকম সিস্টেম যেগুলো আমাদের হওয়া উচিত, 42 থেকে 4400, 4400 থেকে 4600, 4600 থেকে 4800, এগুলো আমাদের ধারাবাহিকভাবে এগুলো করার কথা। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্নভাবে এগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করছে না। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে যখন 7ম পে কমিশন আমাদের বসে তখন আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল যে আমাদের যখন 50% যখন বেসিকের হয়ে যাবে তখন সেটা বেসিকের সাথে মার্জ হয়ে যাবে, কিন্তু ঘটনাচক্রে এখনও পর্যন্ত সে হয়ে ওঠেনি।
আগামী দিনে আপনারা বিশ্বাসী রূপে শুনলেন যে আমরা যদি কেন্দ্রীয় সরকার অষ্টম বেতন কমিশনের যদি খুব শীঘ্রই যদি ঘোষণা না করে কমিটির নাম, যদিও বলা হয়েছে যে 1/1/2026 থেকে এফেক্ট দেওয়া হবে, কিন্তু যদি এটা দেখা যায় কমিটির রিলেভের জন্য এগুলো অনেক দেরিতে আমরা পেতে পারি, সেক্ষেত্রে ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়ন তথা অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে ফেডারেশন এই নিয়ে তীব্র আন্দোলনের দিকে যাবে। এবং তার সাথে সাথে একটা বলি, নৈহাটিবাসী হিসাবে যেহেতু আমরা বহুদিনের চেষ্টা করছিলাম যে এই কমিউনিটি হলকে আমরা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের নামে এটা আমরা পরিবর্তন করে এটা একটা আমরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি। তো আজকে আমাদের অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে ফেডারেশন, আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি কমরেড অমিত ঘোষ এবং আমাদের অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং আমরা সমস্ত যে বিভিন্ন ব্রাঞ্চের শাখা নেতৃত্ব তাদের উপস্থিতিতে আজকে আমরা হলের নাম পরিবর্তন করলাম। এই কারণে করলাম, রেলওয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও আমাদের সাথে সহযোগিতা করে বলেছিলেন যে এই নামটা পরিবর্তন করতে। কাজেই আমরা দুটো হলের নাম পরিবর্তন করছি। একটা হচ্ছে যে কমিউনিটি হল ছিল আগে রেলওয়ে কমিউনিটি হল, তার নাম হচ্ছে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কমিউনিটি হল নৈহাটি, এবং ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ইনস্টিটিউট হল নৈহাটি। এই দুটো হলের নাম পরিবর্তন করতে পেরে আমাদের ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়ন তথা নৈহাটি ব্রাঞ্চের পক্ষ থেকে আমরা সমগ্র মানুষের যে দাবি, দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, সেগুলোকে আমরা আজকে উপস্থাপন করতে পারলাম। এবং আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খুব খুশি হয়েছে এবং আগামী দিন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলেছে আরও যে কিছু সাহায্যের প্রয়োজন আমরা সেই সাহায্য করব। আর অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে ফেডারেশনের মন্ত্রী এসছেন, তিনি আরও কিছু বিস্তারিতভাবে জানাবেন এই আশা নিয়ে আজকে দলে দলে মানুষ এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং তিনি যে বার্তাগুলো দেওয়ার কথা তিনি দিয়েছেন। আগামীকালও আমাদের সাংগঠনিক আলোচনা আছে, সেখানেও তিনি নিশ্চয়ই তার মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন। বলছি যে এনপিএস ইউপিএস এর ব্যাপারে কি বলবেন, যে লড়াইটা বহুদিন ধরে চলছে? এনপিএস ওপিএস এর দীর্ঘদিনের লড়াই ফলে অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে ফেডারেশনে আমাদের যিনি সাধারণ সম্পাদক, তিনি কিন্তু সারা পৃথিবী রেলেরও অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি। কাজেই তিনি যে লড়াই শুরু করেছেন সেই লড়াইটা আমরা সাথ দিয়েছিলাম সঙ্গে। এবং আজকে এনপিএস স্টাফেরা যে ফেসিলিটিসগুলো পেত না, আজকে অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে ফেডারেশনের চেষ্টা, ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়নের লড়াইয়ের ফলে এনপিএস স্টাফরা তারা বিভিন্ন রকমভাবে পেনশন পাওয়া থেকে শুরু করে তাদের যে বিভিন্ন দাবি দেওয়া সেটা অনেকটাই মিটে গেছে। এবং আগামী দিনে আমরা ওপিএসের জন্য লড়াই আন্দোলন চালাচ্ছি এবং আশা করছি যে ওপিএসের আগে অন্তত আমাদের যে ইউপিএস যেটা বলছে তাতেও আমরা যে দাবি পূরণ করার চেষ্টা করছি, সেগুলো আমরা অনেকটা সাফল্যমণ্ডিত অর্জন করছি। আগামী দিনেও সাফল্যমণ্ডিত আরও অর্জন করতে পারবো, এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এবং আমাদের ধারণা এই লড়াইয়ের ফলে আগামী দিন ইউপিএসও আবার ওপিএসের পরিবর্তন হবে, এই আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমরা লড়াই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। আপনার নামটা? আমার নাম হচ্ছে অমিত কুমার বর্মন, আমি ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়নের কেন্দ্রের আমি হচ্ছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। তো এইভাবে আমরা কাজ চালাচ্ছি এবং আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানকে কভার করার জন্য যে সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আপনাদের প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে যে ত্রিবেণীর যে মানে সাধারণ সভা যেটা হলো, আজকে নাম পাল্টে দিয়েছে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রেলওয়ে কমিউনিটি হল। তা ইআরএম ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়ন যে পশ্চিমবঙ্গের শাখার যে ব্রাঞ্চে যে সারা বাংলার মানুষকে নিয়ে আজকে যে শ্রমিকদের জন্য যে বক্তব্য মানে কতটা সার্থক হলো, এবং অনেক দিল্লি বা মুম্বাই এবং সারা বাংলার বা অন্য রাজ্যেরও আজকে নেতৃত্ব এখানে উপস্থিত ছিলেন। কি বলবেন আজকে লড়াইটা কীভাবে দিচ্ছেন? এখন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের নৈহাটি কেন সারা পশ্চিমবঙ্গের একজন গর্ব, এবং এতদিন ধরে আমরা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের নামে আমাদের যে এই রেলওয়ে কমিউনিটি হল এর দাবি আমরা দীর্ঘদিন ধরে করে আসছি, নৈহাটিবাসী করে আসছে। এর ওপরে দাঁড়িয়ে ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়ন, আমাদের মাননীয় জেনারেল ম্যানেজার সাহেব ইস্টার্ন রেলওয়ে এবং আমাদের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শিয়ালদা, সিনিয়র ডিপিও আমাদের সহায় সাহেব, প্রত্যেকের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ ছিল যে এইটাকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কমিউনিটি হল হিসাবে ঘোষণা করা, এবং আমাদের এই মহিলা এবং যুব যে সম্মেলন, সেই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে যে হলটা নতুনভাবে পুনর্গঠন হলো, নতুনভাবে পুনর্গঠন হলো, এই পুনর্গঠনের মধ্যে দিয়ে
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের নামকরণ করা হলো। এটা আমাদের সবার কাছে গর্বের। এই জন্য আমরা রেলের প্রশাসনকে এবং তামাম নৈহাটিবাসীকে আমরা এটা অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর আমাদের এই যে লড়াই, এই লড়াই হচ্ছে রেল বাঁচানোর লড়াই, এ লড়াই দেশ বাঁচানোর লড়াই। এ লড়াই কোনো মালমুড়ি লড়াই নয়, এটা কেবলমাত্র রেল শ্রমিক কর্মচারীদের লড়াই নয়, এ লড়াই আম জনতার লড়াই। তার কারণ ভারতবর্ষের মতো গরিব দেশে আজকে 5 টাকায় 20 কিলোমিটার পর্যন্ত যাওয়া যায়, এটা কেবলমাত্র রেলেই সম্ভব। এবং এই যে গণপরিবহন ব্যবস্থা, এই গণপরিবহন ব্যবস্থাকে রেল আস্তে আস্তে তুলে দিচ্ছে বেসরকারি হাতে, সমস্ত কিছু ঠিকাদারি হাতে নিয়ে যাচ্ছে। এবং আজকে এই রেলকে বিক্রির যে চেষ্টা চলছে, সেই রেলকে বিক্রির চেষ্টা আমরা সারা ভারতবর্ষে, এখানে ইস্টার্ন রেলওয়ে ইউনিয়ন আমাদের এআরএফ অ্যাফিলেটেড 17টা জোনে, যেখানে যে ইউনিয়ন আছে, আমার পাশে ভেনুপি নায়ার আছেন, উনি ন্যাশনাল রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি এবং আমাদের এআরএফেরও অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি, আমিও এআরএফের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি। আমরা সবাই মিলে ভেনুপি নায়ার বলে দিয়েছেন যে সেদিনকে আমাদের যে মহামন্ত্রী শিবগোপালজি মনে করবেন এবং আমাদের সিদ্ধান্ত হবে যে আর সরকারের কথা শুনছে না, রেলটাকে সত্যি সত্যি বেসরকারিকরণের দিকে নিয়ে যাবে, সেদিনকে আমরা যে কোনোভাবে সমস্ত জায়গায় রেল আমাদের পরিবার পরিজন নিয়ে, সাধারণ মানুষকে নিয়ে, যাত্রী সাধারণকে নিয়ে, হকারকে নিয়ে, জনপদ নির্বিশেষে আমরা রেল বন্ধ করে আমাদের দেশের রেল, আমাদের গর্বের রেল আমরাই রক্ষা করব। এবং তার সাথে সাথে আমাদের যে লেবার কোড, যে লেবার ল ছিল, সংবিধানেরও আমাদের সেটা অধিকার ছিল, বাবা সাহেব আম্বেদকর এটা তৈরি করে গেছেন। সেই সংবিধানকে আজ ভুলণ্ঠিত করা হচ্ছে, সেই সংবিধানকে আজকে বিকৃত করার চেষ্টা করছে। আমাদের যে 8 ঘন্টা কাজ, সে অধিকার 1886 সালের পর আবার কেড়ে নিয়ে 12 ঘন্টা, 14 ঘন্টা, 16 ঘন্টা, যদিও রেলে এখনো বহু জায়গায় আমরা এটা করতে পারিনি, এত বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরে এই সিস্টেম চালু আছে। এইটা লাগু করতে চাইছেন, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার কেড়ে নিতে চাইছেন, মান্যতা কেড়ে নিতে চাইছেন, ধর্মঘট করার অধিকার কেড়ে নিতে চাইছেন। সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জারি থাকবে। ইউনাইটেডলি আমরা চাই দলমত নির্বিশেষে বৃহত্তর মানুষের জোট। এবং এই ব্যাপারে ইন্টারন্যাশনাল ট্রাফিক ফেডারেশন, যার আন্ডারে স্থলপথ, জলপথ এবং আকাশপথ যার মধ্যে আছে, সেই আইটিএফেরও আমাদের একজন সৈনিক হচ্ছে আমাদের ভেনুজি, আমাদের শিবগোপালজি, আমাদের প্রবীণাজি, এবং আইটিএফও সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতবর্ষের রেল শ্রমিক কর্মচারীরা এই সিদ্ধান্ত নিলে সারা পৃথিবীব্যাপী এর আন্দোলন আমরা ছড়িয়ে দেবো। বলছি যে এই যে ইস্টার্ন রেল যে রানাঘাট থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত যে একটা এসি ট্রেন চালু করেছে, এত বেশি ভাড়া, মানুষ অনেকে উঠতে পারছে না, দিতে পারছে না, এই বিষয়ে কী বলবেন? এখানে কতটা বেনিয়ম বা নিয়ম একটু বলবেন? যে এসি রেলের ভাড়াটা এত বেশি, সবাই উঠতে পারছে না। এসি আজকে বিলাসিতা নয়, এটা আমি বলছিলাম, সেটা একটা ভালো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে এই এসি রেলের মেনটেন্যান্স মেধা কোম্পানিকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের রেলের হাতে এটা নেই। এটাকে যেমন এসি চালানোকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি, কিন্তু সাথে সাথে এই যে মেধা কোম্পানিকে আমাদের কাটসেটগুলো আছে, নারকেলডাঙ্গা কাটসেট, নানাঘাট কাটসেট, বারাসাত কাটসেট, সোলারপুর কাটসেট, আমরা রেল কর্মচারীরা উন্নত টেকনোলজিকে ব্যবহার করে আমরাই পারবো এটাকে করতে। আর ভাড়া আজকে যদি আনুপাতিক হারে দেখেন, তাহলে আপনি যদি শুধু রানাঘাট থেকে আজ কলকাতা পর্যন্ত যে কোনো এসি গাড়িতে যে ভাড়া আছে, সেই ভাড়ার তুলনায় কিন্তু অনেক কম। এটা বলার কোনো কারণ নেই যে ইয়ের বাইরে আছে। এবং যদি কেউ এটার মান্থলি কাটে, সেই মান্থলির সুযোগ সুবিধা পাবেন, এতে রেলের আর্নিং বাড়বে, রেলে আরও বিকশিত হবে, আরও এগিয়ে যাবে। এই যে সুকাজ, সেটাকে আমরা সব কাজের বিরোধিতা করি না, এই কাজকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। এবং
সুদূর কৃষ্ণনগর থেকে এবং অন্যান্য রুটে যে মূল যে টাইমে লোকে অফিসে যায় এবং বাদুড় ঝোলা হয়ে যায়, তাতে মানুষ কিছুটা নিষ্কৃতি পাবে। যে রোগীরা কলকাতার বুকে আসে তারা চিকিৎসার জন্য প্রাইভেট গাড়ি ব্যবহার করে আনতে গেলে প্রচুর টাকার দরকার পড়ে, সেখানে তাদের স্বস্তি মিলবে। আপনার নামটা একটু বলুন। আমার নাম অমিত ঘোষ, আমি ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক, অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল सेक्रेटरी। धन्यवाद। हमारा एक्चुअली हिंदी में बोलो ना, हिंदी में बोलेंगे, आप बोलिए। थोड़ा मुंबई के लीडर है, आम जनता के लीडर है, बोलिए क्या बोलिएगा आज के माहौल में जो प्रोग्राम हो गया, बोलिए। अभी आप क्या सुनना चाहते हैं उस हिसाब से बोले। हमने जो आज ये रेलवे के कर्मचारी के लिए जो बोले हैं, अब क्या सोचते हैं आगे दिन के लिए? एक तो पहली बात ऐसे है कि जो ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन ने आज जो कार्यक्रम यहाँ जो कर रहा है, खास करके इन्होंने यूथ का और महिलाओं का सेशन, उसके साथ साथ में एक ओपन सेशन चलाने के काम किया। बड़े खुशी के साथ में मैं आपको ये कह सकता हूँ, ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन जो लाल झंडे की यूनियन है, इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड शिवपाल मिश्रा जी को बुलाए थे। अगर आप मुझे पूछेगा कि ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन इस तरीके के कार्यक्रम सारे नौजवानों को, महिलाओं को लेकर करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, पूरी देश भर का जो बेरोजगार नौजवान है, आज हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारों की कोई कमी नहीं है। भारत रेल ऐसी एक बड़ा संस्था है, इस संस्था के अंदर केवल एक वैकेंसियाँ नहीं, करीब 2.5 लाख से अधिक वैकेंसी ऐसा भारत की रेल मंत्री कह रहा है। एक तरफ रेल मंत्री भी कह रहा है कि 2.5 लाख वैकेंसी है, उसके अलावा भी हर महीने में कम से कम हमारे जितने भी मंडल है, जितने भी कारखाना, वहीं से लोग सेवानिवृत्त हो रहा है, उसके वजह में कहीं भर्ती नहीं हो रहा है। एक तरफ बेरोजगार नौजवान देश के अंदर घूम रहा है, रेल के अंदर भर्ती नहीं है, उसके कारण अभी आप ये हमसे यही पूछ सकते हैं कि उससे आपको क्या समस्या है। हमारी समस्या ये है, हमारे रेल के कर्मचारियों का अलग अलग विभागों में इतनी वैकेंसी है, वो काम करके थक जा रहा है, उससे गलत तरीके से काम करवाया जा रहा है। जब तक अगर कोई किसी विभाग के अंदर अगर 15%, 20% से अधिक वैकेंसी होगा, हमारे रेल के कर्मचारी सही ढंग से काम नहीं कर सकता, उनको रेस्ट नहीं मिल रहा है, उनको छुट्टियाँ नहीं मिल रहा है, उनको प्रमोशन नहीं हो रहा है, उनके दूसरे विभागों में ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है। इंटर रेल पे इंटर डिविजन स्पाउस ग्राउंड के अंदर जितनी ट्रांसफ़र के आदेश रेल मंत्रालय निकाल रहा है, उसके अनुसार भी कोई कार्रवाई किया नहीं जा सकता, क्योंकि वैकेंसी है। अगर आज मुझे पूछेगा, मुझे खुशी है मुंबई से आपके ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन नवीन जोशी के साथ में इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मौका मिला, क्योंकि हम चाहते हैं, ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन चाहते हैं, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन चाहते हैं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं उनको नौकरी दे, उनको नौकरी भी मिलेगा, रेल की कर्मचारियों का भला भी होगा और रेल की संचालन में भी बहुत सुरक्षा के साथ में संचालन होगा। ये मुख्य भूमिका है। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दा है, आपने महामंत्री जी से भी सुना होगा, इनसे भी सुना होगा, तो मैं आपको बोर नहीं कराना चाहता हूँ। इसका साथ साथ भेलू जी जो बोला, इसका साथ साथ हम लोग देख रहा है कि आज एक तरफ सरकार नया जो लोगों को नहीं लेता है, उसका बाद में जो हमारा रिटायर्ड कर्मचारी है उसको बहाली करते हैं दोबारा।